نعم نعبده. میری اور آپ کی دلی خواہش کی برعکس یہ روز بروز معتبر اور عزیز تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھ لیں گے. جب جو بھی تلوار کے ساتھ مشق کرنا تمہارے لیے دشوار ہے تو سوچو کہ فولادی شمشیر کا وزن کیسے برداشت کرو گے. کوئی بھی ناز پروردہ کیوں نہ ہو مسلسل مشق سے ماہر ہو جاتا ہے. ان قریب تمہیں فولادی شمشیر ہاتھ میں لینا پڑے گی. یہ چوبی شمشیر تو ابھی ابتدا ہے. جاری رکھیں. پہلے بھی کہا تھا اب پھر کہہ رہی ہوں میں اس کنانے غلام سے مطمئن نہیں. یوزارسیف؟ جی ہاں یوزارسیف. وہ مستقبل میں آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح محبت میں خدا آمون اور پرستش کی رسومات کی تصحیح کرتا ہے. بس کریں کاری ماما. کیسا خطرہ؟ میری سمجھ میں نہیں آتا اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے.
میرے ساتھ آئیں. میں جانتا ہوں یہ چیزیں کہاں لے جانی چاہیے. کہاں جا رہے ہو یوزارسف؟ آئیں تو جان جائیں گی. زیادہ دور نہیں. آ جائیں. آپ کے لیے کھانا لائے ہیں. یہ سب آپ ہی کے لیے ہے. لے لیجئے. 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 لے لیجئے. یہ سب آپ کے لیے ہی ہے. لے لیجیے نا. آپ ہی کے لیے لایا ہوں. لیجیے نا. آپ کے لیے تو لایا ہوں. لے لیجیے. دھیان سے نشانہ لو. آفرین. 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 آفرین.
سے زیادہ ماہر ہو گئے ہو. یوزارسیف کے لیے رودامون ہمیشہ ایک استاد رہیں گے. جیتے رہو بنیامین. یوسف کے بعد اگر تم نہ ہوتے تو اس دور غم ہجرا کو کس طرح کاٹتا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے نبی خدا کی خدمت اور خیال رکھنے کا موقع عطا کیا. مجھے دیجیے ماں. یہ لو بیٹا. تمہیں یاد ہے لیا، یوسف بھی بنیامین کی طرح تمہیں ماں کہہ کر پکارتا تھا. اس واقعے کو 11 سال ہو گئے ہیں بابا، لیکن یوسف کی یاد آپ کے دل سے ذرا برابر کم نہیں ہوئی ہے. بہتر نہ ہوگا کہ اب آپ اسے بھول جائیں؟ یوسف کا خواب تمہیں یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے. اس نے آپ، ماں اور ہمارے سارے بھائیوں کو اپنے آگے سجدے کی حالت میں دیکھا تھا. یہ سجدہ یعنی یوسف کی برتری مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر، یعنی یوسف مجھ پر حق ولایت رکھتا ہے. یہ تو ممکن ہے کہ اپنے بیٹے کو بھول جاؤں، لیکن ولی خدا کو بھول جاؤں یہ ممکن نہیں. یا نبی خدا، کیا ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر سے برتر ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی پیغمبر دیگر انبیاء کے اہداف و مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے تو یقیناً وہ ان پر ولایت و برتری رکھتا ہے. یوزارسیف، میرے بیٹے، میری کوئی اولاد نہیں ہے. تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھو اور کوئی بھی مشکل ہو تو مجھ سے کہو. ہر خدا لائق پرستش نہیں، خدا کو بے نیاز ہونا چاہیے. زمان و مکان سے بے نیاز، کھانے اور سونے سے بے نیاز، تمام مخلوق نیاز مند ہے، تمام مخلوق ضعیف و ناتواں ہے. غنی مطلق فقط خدا کی ذات ہے. تم لوگ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کوئی کام کاج ہے نہیں تم لوگوں کو؟ چلے جاؤ یہاں سے. تمام مخلوق نیاز مند ہے. یوزارسیف، آپ لوگ بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں. عالی جناب پوتیفار کو مجھ سے کوئی کام تھا. پیشکار قصر جناب ہنیفر کافی عرصے سے علیل ہیں اور قصر کے بہت سے امور التوا میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی صحت یابی تک امور قصر کی تمام ذمہ داریاں آپ سنبھالیں گے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں معذرت چاہتا ہوں. معذرت.
जनाब हुनिफर की बीमारी से बाखबर हूं। इनकी अयादत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतयाबी तक हत्तुल मकदूर फराइज की अंजामदही करूंगा। परेशान नहीं हूं और मैं जानता हूं कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपासगुजार हूं, ये आपका हुस्न नजर है। आसिफ हुनिफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। यकीन नहीं आ रहा ना? खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाबे पोतीफार की जबान से। यकीन करो। नीमू साहब ने खुद सुना है। यकीन करो, हुनिफर के कायम मकाम बने हैं। युजार सिर्फ से बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आसिफ हुनिफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। अब इतना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार सिर्फ आज से पेशकार हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा। जी जनाब युजार सिफ। मैंने बताया था ना कि जनाब हुनिफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहां खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिनुहा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमजोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। अरसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूं। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। आप परेशान मत हों, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूं, परेशान हूं अपनी उम्र के रायगाह जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पा सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूं। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताओ युजार सिफ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूं। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ देर जनाब हुनिफर के साथ तन्हा छोड़ दें।
آپ جبکہ 11 سالوں سے خداوند یکتا کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، بس یکتا پرست ہیں. مبارک ہو. میں نے مدتوں اس خدا سے تنہائی میں باتیں کی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا کے رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے؟ اگر مجھے ان کے بارے میں علم ہو جائے تو یقیناً ایمان لے آؤں گا. حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ اور خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اور یوسف اس وقت ان میں سے آخری ہے. آصف، کیا کہہ رہے ہو؟ یوسف تو تمہارا اصلی نام ہے، یعنی تم پیغمبر ہو. یوسف، اگر مجھے پتا ہوتا تو سالوں پہلے ہی میں تم پر ایمان لے آتا. جناب ہونے پر کیا کفر و شرک کے خداؤں سے اور بے جان بتوں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں؟ مبارک ہو. یکتا پرستوں کے مجمع میں خوش آمدید. سالوں پہلے جناب پوتیفار کے ہمراہ آمون کے پیروکار کی عبادت کا شاہد رہا ہوں اور دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ مصنوعی بتوں کو کس طرح مقدس گردانتے ہیں اور اپنی ضروریات کو ان سے عرض کیا کرتے تھے. میں نے اسی زمانے سے خداوند سے عہد کیا کہ کفر و شرک اور بت پرستی سے مبارزہ کروں گا، اور مجھے خوشی ہے کہ جناب ہونے پر میری ان کاوشوں کے ثمرات میں سے ایک ہیں. میں بھی خوش ہوں. سے کیا اگر دنیا سے چلا جاؤں تو میرا مقام جہنم تو نہیں ہوگا نا؟ یقین رکھیں، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی شرک کو ترک کر کے خدائے یکتا پر ایمان لے آئے تو اس کا شمار نجات یافتہ میں ہوگا. درود بر جناب یوزارسیف. پیشکار اعلیٰ قصر پوتیفار. آپ سے کس نے کہا کہ میں پیشکار ہوں؟ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں جناب پیشکار. درود بر عالی جناب یوزارسیف. آپ پر بھی درود ہو. آپ نے غلط سنا ہے، پیشکار اب بھی جناب ہنیفر ہیں. میں تو صرف ان کی صحت یابی تک یہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہوں. تعجب ہے. اچھا، بانو زلیخا کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی. گویا قصر کے نئے پیشکار جناب یوزارسیف کچھ بھی نہیں. کبھی کبھی تو آپ اپنی حدود پھلانگ جاتی ہیں کاری ماما. یاد رکھیں، ہمیشہ آپ کے یہ طنز کے نشتر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. کل دریائے نیل کے کچھ ساحلی علاقے آمون کے نام پر جبرن قبضے میں لے لیے گئے ہیں، اور آج نشیبی علاقوں سے چند غریب نوجوان لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر معبد آمون لے آئے ہیں. آمون کی ہمہ سری کے لیے اٹھا کر لے آنا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. نوجوان لڑکیوں نے ہمیشہ اپنی رضا اور رغبت سے آمون کی ہمسری کا انتخاب کیا ہے، نہ کہ جبرن. کاہنوں کی لذت کے لیے اٹھا کے لے گئے ہیں، نہ کہ آمون کی ہمسری کے لیے. وگرنہ ان بے جان پتھر کے ٹکڑوں کو بیوی کی کیا ضرورت. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ جوان ولی عہد کے سامنے معبد کے کاہنوں اور آمون بزرگ کی اس طرح توہین کریں. یہ باتیں اس کے ایمان کو متزلزل کر دیں گی. ایمان؟
हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतजलजल करेंगे, न कि इन हकायक का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के कहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही हैं और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती हैं। इन्हें आमून और खुदसर व फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज ही बाद मैं आपसे दूर रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए यूजारशिप पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बड़ा ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्न नियत से ज्यादा हिमाकत पर मबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद पर खुदाबंद कसर जनाब पुतिफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतिफार। दुदामून और यूजारशिफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा।
आमून होता मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सरतरत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमादी लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? अब उन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। अब उन होतब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और नमाबर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमून होतब की कसम हर फर्द। आली जनाब, आमून होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है। वो आमून के मामले में बड़ी रासिख़ुल अक़ीदा हैं। ताज्जुब है। यही बात आज जनाब आमून होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमून होतब की जान को खतरा है। उनकी हिफाजत करिए। अपना ख्याल रखना। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। बानूती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं। मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ। आली जनाब, कोई मसला है? आली जनाब, काहिन आज़म आँख महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरीन माबद की खुदसरियां हुकूमत मिस्र के इंतजामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस बन रही हैं। आमून होतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसरियों, साजिशों और तखरीबकारियों से बाज आते हुए कब्ल अज इक़दाम उनसे उज़्र ख़्वाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मजीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानूती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला किया है। जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है।
जनाब आक महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होटब के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अज़्र ख्वाही कर लें, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। अली जनाब, अज़्र ख्वाही से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाक यमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है आमून होतब। हम भी फर्द वाहिद के जरिए ये हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं, लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूजारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नजर में इसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूजारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस पर खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आमद और रफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब यूजारसीफ, जनाब हुनैफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूं। हमारे मेहरबान जनाब हुनैफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूजारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूजारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकिनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फजा छा जाएगी।
यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफत? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर यूसुफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूसुफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकनाने कसर के और यूसुफ जवान के सामने ये इकरार करता हूं कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदायानी मिस्र ईमान रखता हूं और उससे चाहता हूं कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूंगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत करे। खुदावन जनाब हुनीफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक और मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनीफर एक शफीक और मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनीफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनीफर की आखिरी सुमात बहुत शान और शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्व ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए।